Hello everyone, this is CS Divesh Goyal, practicing company secretary from Delhi. I welcome all of you on my YouTube channel, that is FCS Divesh Goyal. The purpose of this channel is very clear: to help the professional fraternity, to discuss the latest amendment, discuss the latest provision with the professional fraternity. So hope you all find this channel useful. किसी का कोई suggestion हो, किसी का कोई comment हो, please share with us so that if any improvement is required, we can do that improvement. And if you like the videos of this channel, please share the videos with your circle, with your friends. So today we are going to discuss in this video our latest circular passed by the Ministry of Corporate Affairs, that is circular number 5 2023, passed on the 22nd February 2023. This circular is about filing of the certain e-forms with the Ministry of Corporate Affairs in the physical manner. As we know, Ministry have rolled out from the MCA V2 portal to the MCA V3 portal. Due to this rollout, certain issue everyone is facing, certain we can say difficulties are there. To give a chance for the companies for not delayed their compliances, ताकि companies अपने compliances time पे कर पाए in this rollout period, कुछ important specific forms के लिए Ministry of Corporate Affairs ने अलाउ किया है कि आप फॉर्म फिजिकल में फाइल कर सकते हो. तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन से फॉर्म है जो फिजिकल में फाइल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें अपने माइंड में रखने हैं, याद रखने हैं फिजिकल में फॉर्म्स को फाइल करते वक्त. तो पहला क्वेश्चन इसमें है, विच फॉर्म आर अलाउड बाय द एमसीए फॉर फाइलिंग इन फिजिकल मोड. जो सर्कुलर नंबर 5 है, सर्कुलर नंबर 5 के अकॉर्डिंग दीज आर द 6 फॉर्म. GNL2 फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टस रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, MGD14 for the purpose of prospectus related document and private placement, PS3 for any type of allotment, FSH 8, 9, 10, 11 relating to the buyback. These 6 form can be physically filed with the concerned ROC for the time being. What is the time? Let's discuss. What is the time period for filing of the above mentioned 6 form in physical manner? As per this circular, above mentioned 6 form can be filed in physical for the period from 22nd February to 31st March. इन 6 फॉर्म में से अगर कोई भी फॉर्म आपका इलेक्ट्रिकली फाइल नहीं हो रहा है तो आप इन फॉर्म को फिजिकली फाइल कर सकते हो बिटवीन 22nd Feb टू 31st March विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. अब एक क्वेश्चन बहुत सारे ज्ञान गुरुकुल के मेरे मेंबर्स ने पूछा, जो ज्ञान गुरुकुल के फैमिली मेंबर्स है, प्रोफेशनल मेंबर्स है, whether MGT14 for private placement of a letter can be filed physically according to this circular. So as per this circular, MGT14 can be filed in physical for the two purpose, only for two purpose. Purpose number 1, filing of resolution relating to prospectus related document. अगर कोई prospectus related document का resolution फाइल करना है तो आप फिजिकल में कर सकते हो. फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट से रिगार्डिंग भी अगर कोई है तो आप उसको फिजिकली फाइल कर सकते हो. MGT14 के लिए एक और क्वेश्चन है कि पर्पस, कौन कौन से पर्पस के लिए MGT14 फिजिकल में फाइल होता है, तो हमने डिस्कस कर लिया टू पर्पस के लिए फिजिकल में फाइल हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ड्यू डेट ऑफ एनी फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड, 22 फरवरी को ऑलरेडी ड्यू डेट एक्सपायर हो गई है, whether such form can also file in physically. So as nothing specifically mentioned in the circular, but circular saying if you are filing any of these 6 form between 22nd February to 31st March, you can file physically. तो practically अगर हम circular की लैंग्वेज रीड करते हैं तो one can simply opine that due date of the form doesn't matter for physical filing. The only thing matter कि you are filing between 22nd February to 31st March. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, ट्विटर पे भी ये क्वेश्चन बहुत चल रहा है, ज्ञान गुरुकुल में भी बहुत लोगों का आ चुका है, बहुत लोगों के मेरे पास कॉल्स भी आ चुके हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए. तो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसका आंसर दे पाऊं. अगर किसी का कोई और भी सजेशन हो इसमें तो प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. हाउ टू फाइल दिस 6 फॉर्म इन द फिजिकल मैनर. अब इसमें कि प्रोसेस क्या होना चाहिए फिजिकल मैनर में फाइल करने का. प्रोसेस से पहले एक छोटा सा इशू आता है. इशू क्या आता है, अगर मुझे फॉर्म फिजिकल में फाइल करना है तो फॉर्म कहां है जिसको मेरे को फिल करना है. अगर मैं बात करूं V2 में तो मेरे पास ऑप्शन था कि फॉर्म डाउनलोड हो जाता था. आज की डेट में ये 6 फॉर्म V2 पे अवेलेबल नहीं है. V3 पे वैसे भी हम कोई फॉर्म डाउनलोड नहीं कर सकते जब तक हम फिल नहीं करते, और फिल करने में इशू आ रहा है इसीलिए हम फिजिकल में जाना चाहते हैं. तो हमारे पास फॉर्म कहां है जिसे फिल करके ROC में सबमिट करना है. सो होप मिनिस्ट्री इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन लेके आए. बट व्हाट आई कैन ऑब्जर्व तो ये है कि जब मिनिस्ट्री ने सर्कुलर्स निकाले थे V3 के न्यू फॉर्म्स के, जो 46 न्यू फॉर्म्स आए थे, सर्कुलर्स आए थे, उन सर्कुलर में प्रॉपर फॉर्म्स मेंशन किए हुए थे, फॉर्म्स के फॉर्मेट थे. तो आई थिंक देयर इज अ वन ऑप्शन, या तो हम उसी फॉर्म्स का सर्कुलर से प्रिंट आउट निकालें और उसे फिजिकली फिल करें.
या मेरे पास V2 का कोई फॉर्म अपने सर्वर पर अपने सिस्टम में है, इनमें से 6 फॉर्म में से कोई हम उसको डाउनलोड करें और उसे फिल करें। बट डेफिनेटली वी रिक्वायर्ड वन क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री कि हमें कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, जिसको हम फिल करके फिजिकली फाइल कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, प्रिंट लेना है, फिर उसका प्रिंट लेके उसको मैन्युअली फिल करना है। फिर देन आपको एक अंडरटेकिंग बनानी है कि द कंपनी वंस दिस पोर्टल विल स्टार्ट प्रॉपरली वर्किंग, कंपनी विल फाइल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद द फीस, विद द आरओसी एक्चुअल फीस। तो ये अंडरटेकिंग भी देना मैंडेटरी है फिजिकल फाइलिंग ऑफ फॉर्म के साथ। ये अंडरटेकिंग प्रिपेयर होने के बाद गेट द साइन, कंसर्न पर्सन के आपको साइन चाहिए। फॉर्म शुड बी फिजिकली साइन बाय द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू फाइल दैट फॉर्म। जब हम बोर्ड रेजोल्यूशन में जिस पर्सन को ऑथराइज करेंगे फॉर्म फाइलिंग के लिए, उसी पर्सन से फिजिकल साइन भी फॉर्म होना चाहिए। देन सबमिट द फॉर्म along with the undertaking and the attachment with the registrar of company in physical, and along with the physical form company have to submit the copy of the form undertaking attachment in the pen drive or any other electronic media। मतलब आपको फिजिकल भी देना है और अदरवाइज और उसके साथ पेन ड्राइव या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देना है। एट द टाइम ऑफ फिजिकल फाइलिंग कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, और आरओसी एक एक्नॉलेजमेंट देगा। एक्नॉलेजमेंट का फॉर्मेट भी सर्कुलर में अटैच था, उसी वी कैन से कि उसी फॉर्मेट में आरओसी आपको इस फॉर्म के सबमिशन का एक्नॉलेजमेंट देगा। So once the electronic form shall be available on the portal for proper filing, company shall file electronic form on the V3 portal also। तो ये स्टेप रहेंगे फिजिकल फॉर्म फाइलिंग करने के विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सबमिट फॉर्म इन फिजिकल मैनर विच ऑफ द फॉलोइंग मोड शुड बी यूज्ड, लाइक कोरियर करें, स्पीड पोस्ट करें या हैंड डिलीवरी। सो सी सर्कुलर में मेंशन किया है कि जब आप फिजिकली फॉर्म फाइल करोगे आरओसी आपको एक एक्नॉलेजमेंट देगा। तो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन कि अगर हम फिजिकली जाके आरओसी डिपार्टमेंट में जाके फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे, तो हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। बट हम कोरियर करेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट द एक्नॉलेजमेंट। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप फिजिकली बाय हैंड डिलीवरी ही फॉर्म्स को आरओसी में सबमिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर PS3 फॉर राइट इशू ऑफ शेयर कैन बी फाइल्ड फिजिकली। As per circular, nowhere it is restricted about the mode of allotment in PS3। So किसी भी allotment के लिए आप PS3 physically फाइल कर सकते हो। To which ROC company can submit this form? ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आया था कि सर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस तो दिल्ली में है, बट मेरी कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई से ऑपरेट होता है, तो क्या मैं मुंबई आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता हूँ? द आंसर विल बी नो। आपको डॉक्यूमेंट अपने कंसर्न आरओसी के पास ही सबमिट करने हैं। So this is completely everything about the physical submission of the form। So physical submission of form में किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल में शेयर कीजिए, बिकॉज इन वीडियो का एक सिंगल मोटो है कि हमें प्रोफेशनल फर्टिलिटी की हेल्प करनी है, हमें मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट होकर वर्क करना है, और हमें ट्राई करना है कि हम अपने प्रोफेशनल कलीग्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज लाइक द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।